Hello students. Today I am going to discuss about the infinite series. Infinite series is an important topic of real analysis. अगर हमें दो या तीन टर्म को ऐड करने को दिया जाए 1 + 2 + 3 तो इजीली हम ऐड कर सकते हैं, 5 to 6 इजीली ऐड कर सकते हैं. बट what happen when we are giving infinite number of terms to add up? ओके, इन दैट केस, उस केस में हम लोग सीरीज़ की हेल्प लेते हैं. ठीक है, सीरीज़ के हेल्प से हम उसे ऐड करने की कोशिश करते हैं और इसी चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ इनफाइनाइट सीरीज़. वी हैव ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस इन लास्ट लेक्चर. ठीक है, सीक्वेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. तो देखिए सीरीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज. लेट UN बी अ गिवन सीक्वेंस. सपोज करिए UN हमारा जो है U1, U2, U3, U4 ये एक सीक्वेंस के फॉर्मेट है. ठीक है, देन अगर इनको हम इस तरह से ऐडअप कर लें सारे सीक्वेंस के नंबर्स को, तो उस केस में ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ये एक्सप्रेशन कहलाता है इनफाइनाइट सीरीज. यू कैन सी द टर्म गोज अप टू द इनफाइनाइट. ओके, बेसिकली इसको हम शो करते हैं समेशन UN से, वेयर n इज इक्वल टू 1 to infinite, 1 to infinite. The first term, the sum of first n term को हम डिनोट करते हैं कैपिटल SN से, वेयर SN इज यू कैन राइट U1 + U2 so on and so forth plus UN. फर्स्ट n टर्म्स के सम को हम डिनोट करते हैं SN से. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. किसको? कैपिटल SN को. इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 यू विल गेट फर्स्ट टर्म. If you put n is equal to 2, means it is not necessarily Sn is equal to, you can see here, if you put S is equal to 2, what you will get? You will get U1 + U2. This is sum of the series. ठीक है, जितने n, where n is your natural number. n क्या है? नेचुरल नंबर है. जितने भी आप n की वैल्यू रखेंगे उतने टर्म्स उसमें ऐड होते चले जाएंगे. दिस विल डिफाइंड बाय SN. ठीक है, यू कैन सी S1 इज इक्वल टू U1, S2 U1 + U2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. सो दिस इज योर इनफाइनाइट सीरीज. ओके, now let's see what is the convergence of the series, means how series behave. Okay, number one, convergent series. When an infinite series is said to be convergent? A infinite series is said to be convergent if the sequence SN, जो sequence आपको बताया, sequence SN means its partial sum should be convergent. अगर इसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. कन्वर्ज मीन्स उसकी लिमिटिंग वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू दे. ठीक है, तो मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN इज इक्वल टू S. दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज. ओके, वेयर S इज एनी फाइनाइट नंबर. Here S is called the sum of the series. यहाँ पर जो S है वो पूरी सीरीज के सम को शो करता है, इसलिए इस S को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. Sum of the series denoted by capital S. In the limiting case, when you will take n tends to infinite, sum of the sequence is finite, then the series is said to be convergent. And if the series is either plus infinite or minus infinite, then the series is said to be the divergent. Okay, and if the series is neither convergent nor divergent, in that case the infinite series is said to be the oscillatory. Okay, so in this lecture हमें इनके यही तीनों बिहेवियर के बारे में बात करना है कि कैसे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और किसी भी सीरीज की कंडीशंस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे that's it. Okay, now let's see some example to understand the convergence and divergence of the series.
let's see some examples how you will check the convergence of the infinite series. Number one, this is your summation un is equal to 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 plus 1 by 2 square, so on and so forth. Okay, then what will be the nth partial sum? n term के अगर हम जाएं 1 plus 1 by 2 square 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on and so forth plus 1 upon 2 to the power n minus 1. Therefore, you know the formula. This is in geometric series. So 1 minus 1 by 2 to the power n upon 1 minus 1 by 2. Since you know very well, if series is of the form a plus r square, so on and so forth, then what will be the sum of the n term? You know the formula, a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, where r should be less than 1. Okay, so what you will get here, that will give you 1 by 2 times 1 minus 1 by 2 to the power n. This is your Sn, and here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हैं, if you take n tends to infinite, Sn will be 2, which is a finite number. यहाँ आप देख सकते हैं, अगर n की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख दें तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 2 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर का अगर पावर इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है. ठीक है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, यू विल गॉट 2, विच इज अ फाइनाइट नंबर. फाइनाइट नंबर. देयरफॉर गिवन सीरीज un is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square, so on and so forth, is what? Convergent. That's it. Only you have to find out the nth partial sum and find out the limit of that. Okay, now let's see the second part. Here you can see that is your un is equal to 1 plus 2 plus 3, so on and so forth. In that case, what will be the sum of nth partial sum? Here you can write 1 plus 2 plus 3, so on and so forth, plus n, and you know the formula, n plus 1 by 2. This is the sum of n natural numbers. Okay, taking limit n tends to infinite, Sn, that will be give you, you can take that will be infinite. Okay, so this will give you series un is what? Divergent. Now let's see the solution of third one. We have series un is equal to 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1, so on and so forth. Then what will be the Sn? Let's see. Sn means sum of nth partial sum. Okay, if you take even number of terms, दो का अगर हम पेयर बनाएं तो देखिए 1 minus 1 that will be 0, 1 minus 1 that will be 0. Okay, though sum of nth partial sum will give you 0 when n is what? Even. ठीक है, अगर n यहाँ पर अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लें, दो को जोड़ें, दो, तो आप देखिए 2 जोड़िए, 1 minus 1 0, 4 ले लीजिए, 1 minus 1 अगेन 0. बट व्हाट हैपन इफ यू विल टेक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स? ऑड मीन्स 1 अकेला टर्म लीजिए 1 मिलेगा, 3 ले लीजिए, अगर 3 लेंगे व्हाट यू विल गेट? 1 minus 1 plus 1, 1 कैंसिल, दैट विल बी 1, मीन्स यू विल गेट 1 व्हेन n is what? Odd. ठीक है,
ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ एस एन जो है वो nth पार्शियल सम को डिनोट करता है। n की जितनी वैल्यू होगी उतने टर्म को आप एक साथ लेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो इसकी जो सम है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। तो इस केस में अगर कन्वर्जेंट फाइनाइट है, लेकिन कन्वर्जेंट होने के लिए जो उसकी लिमिट होनी चाहिए, लिमिट यूनिक होती है। किसी भी सीरीज की लिमिट एक ही होगी, पूरे सीरीज में जितने भी आप nth पार्शियल सम की लिमिट लेंगे वो एक ही आपको आएगी, वह एक ही मिलती है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। आप लिमिट जानते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होता है तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिमिट लेंगे, लिमिटिंग केस अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट सेम आएगी और फाइनाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर लिमिट सेम नहीं है, फाइनाइट है लेकिन लिमिट सेम नहीं, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो इस केस में अगर ये सीरीज न तो कन्वर्जेंट है न तो डाइवर्जेंट है तो सीरीज क्या होगी, ऑसिलेटरी। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस एस एन ऑसिलेट्स between 0 and 1, therefore it is oscillatory series. This was your answer. ठीक है। Now let's discuss one important theorem depend on the convergent of the series. Okay, what is this? If the series is convergent, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है, अगर वो कन्वर्जेंट है, देन लिमिट ऑफ दैट सीरीज विल बी 0। तो उसके जो nth टर्म की जो लिमिट होगी दैट विल बी क्या होगी, 0। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स अगर कोई फंक्शन, अगर कोई सीरीज है, वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट 0 होगी। लेकिन अगर सीरीज की लिमिट 0 हो रही तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो सीरीज हो वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, प्रूफ। लेट सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट। हमने मान लिया कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। लेट, आप जानते हैं, एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ nth partial sum of series un. That means i.e. Sn is equal to u1 plus u2 plus u3 plus so on and so forth plus un. अगर हम एक कम टर्म लिखना चाहें तो you will write therefore un plus u2 plus so on and so forth plus un minus 1। आप चाहें तो इसको इसके एक पीछे का भी टर्म लिख सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, therefore what you will get, sn minus sn minus 1, that will be, this will be cancelled, you will got un. Therefore taking limit in both side, what you will get, limit n tends to infinite, un is equal to limit n tends to infinite sn minus limit n tends to infinite sn minus 1. You know the given series is convergent. अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमारे जो nth पार्शियल सम का जो लिमिट होगा वो एक फाइनाइट नंबर होगा और एक ही सीरीज में, ठीक है, फाइनाइट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिंस सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट, तो उसके जितने भी nth पार्शियल सम आप उठाएंगे उन सब का जो सम है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट, यहाँ देख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इनफाइनाइट
Sn will be S and limit n tends to infinite Sn minus 1 will also be S। ठीक है, यहाँ S से मतलब है फाइनाइट का। ठीक है, फाइनाइट मतलब कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसका जो nth पार्शियल सम की लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी। तो यहाँ दोनों अफाइनाइट होगी और इक्वल होगी। ठीक है, तो उस केस में दिस विल गिव यू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ ये वैल्यू भी यहाँ से s है, ये वैल्यू भी s है, तो s माइनस s क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज योर नेसेसरी पार्ट। इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un will be 0. Now I am going to prove your sufficient part. What is the sufficient part? That is the converse is not true. Means I am going to show that with the help of an example that the series may be satisfied this condition, means limit n tends to infinite un is equal to 0, but that series will not be the convergence. Let's see. Consider an example. Consider the series 1 plus 1 by under root 2 plus 1 by under root 3 plus so on and so forth. Okay, that means i.e. you can write it like un is equal to 1 series un is equal to 1 plus under root 2 plus under root 3 plus so on and so forth under root n plus so on and so forth. Therefore, what will be the nth term? Here I am taking nth term, not the sum of n term. Okay, that will be under root n. What you will get if you take the limit n tends to infinite un will be 0. ओके, सो आपने देखा कि इस सीरीज में जो n टेंस टू इनफाइनाइट un की वैल्यू क्या आ रही 0 आ रही, ये सेटिस्फाइड कर रहा। अब अगर हम ये दिखा दें कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी। नाउ व्हाट अबाउट Sn? Sn will be 1 plus 1 by root 2 plus 1 by root 3 plus 1 by root 4 1 by root 3 so on and so forth plus 1 by under root n। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सीरीज है वो क्या होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 1 है, उससे छोटी वैल्यू मतलब वैल्यू हमारी क्या हो रही डिक्रीज हो रही। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी मिल रही, आप यहाँ n की कोई भी वैल्यू रख लेंगे, हर टर्म इससे क्या होगा बड़ा होगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं अगर इसको हम ऐड कर दें दैट विल गिव यू, यानी Sn, दिस इज योर Sn इज ग्रेटर देन n अपॉन अंडर रूट n, बिकॉज दिस इज योर n टर्म, दैट विल बी कैंसिल, दैट विल बी रूट n, means you have got n is greater than under root n. If you take limit n tends to infinite Sn, that will tends to infinite, whereas n tends to infinite. अगर हम यहाँ n की लिमिट इनफाइनाइट करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो Sn है वो भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। मीन्स which shows that series un is not convergent although limit n tends to infinite un is equal to 0. So this was the proof of the theorem. ठीक है, now let's see some properties of the series. Let's see what is the property. The series
द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज रिमेन्स अनअफेक्टेड। मीन्स अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंस बना रहेगा, डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस बना रहेगा। अगर इफ़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर एडेड और निग्लेक्टेड, अगर हम किसी सीरीज में एक टर्म ऐड कर दें या एक टर्म कम कर दें तो उससे उस सीरीज के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट बना रहेगा, अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट बना रहेगा, पहली चीज़। दूसरी, इफ़ ईच टर्म ऑफ ए गिवन सीरीज इज मल्टीप्लाइड, अगर कोई भी सीरीज एक नॉन जीरो कांस्टेंट से, मतलब नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर से अगर हम किसी सीरीज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो भी उस सीरीज के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट बना रहेगा, अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट बना रहेगा। एंड थर्ड वन, अगर कोई दो सीरीज है, ठीक है, फॉर्म बाय देयर सम विल बी, ठीक है, अगर कोई दो सीरीज है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी। अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है तो, दो सीरीज है, दो सीरीज को आपने ऐड करके लिख दिया, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब वो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन डाइवर्जेंट कब होगी? जब उसमें से एनी वन ऑफ द गिवन सीरीज, अगर कोई एक सीरीज भी डाइवर्जेंट है तो वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन कन्वर्जेंट होने के लिए दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। सो दिस वाज द आई हैव टेकन सम प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, ओके, देयर मे बी सम मोर प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन व्हेन इफ इट इज नेसेसरी, ओके। Now let's some test for the convergence. Number one is Liebnitz test. Here Liebnitz test is applied only for the alternating infinite series. A series is of the form un minus u2, u3 minus u4, so on and so forth. You can see the series is here, the sign of the series is alternate, plus minus plus minus. In that kind of series is known as alternating series, okay. So Leibniz test tells us an alternating series is said to be convergent अगर वो क्या हो, पहली बात तो n टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, जो सीरीज के टर्म्स हैं वो कंटिन्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज करते रहना चाहिए, और लास्ट टर्म जो n टर्म है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सिडर द सीरीज, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉन्सिडर द सीरीज 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 and so forth. So here you can see कि केवल हम टर्म्स की बात करेंगे। यहाँ देखिए जो टर्म्स हैं वो अपने आगे वाले टर्म से बड़े हैं, देख रहे हैं, मीन्स यहाँ अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो आपको मिलेगा u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब पहला टर्म दूसरे टर्म से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे भी पहला टर्म दूसरे टर्म से क्या है, बड़ा है। प्लस माइनस का मतलब नहीं है, प्लस माइनस केवल ये बताता है कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज है और कोई रोल नहीं है उसका, ठीक है। और यहाँ जो भी टर्म है वो अपने आगे वाले टर्म से बड़े हैं। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 हियर, 1 is greater than 1/2 is greater than 1/3, so on and so forth. So you can see the second condition of Leibniz test is satisfied, and first term already satisfied है क्योंकि हर टर्म यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। Now check the third term, therefore what will be the un, ठीक है, un means nth term and that will be 1/n. Take the limit n tends to infinite, un will be 0. So you can see all the three conditions of Leibniz test is satisfied, therefore this series is convergent. Therefore series 1 minus 1/2 plus 1/3 so on and so forth is convergent by Leibniz test. ठीक है, मीन्स अगर कोई सीरीज अल्टरनेटिंग है तो आपको ये तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा,
to show the convergence of the series.